So children, what is there on your screen? PPT. Some PDF. other common examples of bonding. यही है स्क्रीन पे आपके some other common examples. Yes, sir. Yes, sir. All right. Yesterday we studied how bonding takes place in H2 molecule, O2 molecule, and N2 molecule. Single covalent bonding, double covalent bonding, and triple covalent bonding. Let's see some more examples. First example, formation of hydrogen molecule. Here you can see the Lewis structure or electron dot structure of hydrogen atom. So one hydrogen atom means one hydrogen H is written and one dot is written. This dot represents one valence electron. Similarly, another hydrogen atom containing one dot. Both these hydrogen atoms share their electrons and they form single covalent bond between two hydrogen atoms. In case of oxygen molecule, we can see the Lewis structure of oxygen. There is O and 6 valence electrons represented with the help of dots, 6 dots. Two oxygen atoms share 2 electrons each. Since there is sharing of two pairs of electrons, there is the formation of double covalent bond. Formation of water molecule. How water molecule is formed? There is covalent bonding between two hydrogen atoms and one oxygen atom. The electron dot structure of hydrogen contains symbol H along with one dot. Electron dot structure of oxygen atom contains O along with 6 dots in its surrounding. These dots represent the number of valence electrons. Then one more hydrogen atom. When they can combine by sharing their valence electrons. So hydrogen atom contributes 1 electron for sharing and oxygen contributes 1 electron for sharing with one hydrogen atom. Similarly, oxygen contributes 1 more electron for sharing with another hydrogen atom. In this way, two single bonds are formed between oxygen atom and two hydrogen atoms. So oxygen is bonded to one hydrogen atom with single covalent bond and another hydrogen atom with single covalent bond. Here we can see the formation of ammonia molecule. Ammonia molecule consists of 3 atoms of hydrogen and 1 atom of nitrogen. ठीक है, आप देख सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर of 3 hydrogen atoms and 1 nitrogen atom. How many valence electron nitrogen have? 5, because configuration is 2 5. So 5 dots are placed around nitrogen. When sharing is done, each atom contributes 1 electron. Hydrogen contributes 1 electron, nitrogen contributes 1 electron. Similarly, nitrogen contributes 1 electron with another hydrogen atom and hydrogen contributes 1 electron. With third hydrogen atom also, nitrogen contributes 1 electron and hydrogen contributes 1 electron. In this way, 3 single covalent bonds are formed between nitrogen atom and 3 individual hydrogen atoms. There is one non-bonded pair of electron present on nitrogen atom. And this non-bonded pair of electron present on nitrogen atom is known as lone pair of electron. So non-bonded electrons are also known as lone pair of electrons. Fine. So let's see how can we write the Lewis structures or Lewis representations of simple molecules. What are various steps which we need to follow for writing the Lewis symbols. So first step is calculate the total number of valence electrons of combining atoms. अगर जितने भी atoms combine कर रहे हैं उन सभी atoms के valence electrons का sum निकालना है पहले. ठीक है. So first of all we have to calculate the total number of valence electrons present in all the combining atoms. Then in case if the ion is an anion, then we have to add the number of electrons equal to the number of negative charge present on the anion. So each anion means addition of 1 electron and each cation means removal of 1 electron. जितना चार्ज कैटायन पे है उतना इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देंगे, जितना चार्ज एनायन पे है उतने इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर लेंगे. This gives the total number of electrons to be distributed while writing
लुईस स्ट्रक्चर्स और लुईस रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया? इज इट क्लियर नाउ चिल्ड्रन? Yes, sir. ओके, सो सबसे पहला काम क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। दूसरा काम क्या है? अगर आयन है और वो निगेटिवली चार्ज आयन है, तो निगेटिवली चार्ज आयन पे जितने निगेटिव चार्जेस हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स और उसमें ऐड कर लेंगे। अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन है, कैटायन है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन उसमें से माइनस कर देंगे। देन थर्ड स्टेप, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। अब लुईस स्ट्रक्चर लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये सेलेक्ट करना कि उसमें से सेंट्रल एटम कौन सा है। विच विल बी द सेंट्रल एटम? द लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। जितने भी एटम बॉन्डिंग कर रहे हैं उसमें जो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला एटम होगा उसको हम सेंट्रल एटम मानेंगे। तो सेलेक्ट द सेंट्रल एटम विच इज जनरली द लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एंड राइट द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंट गैस। अब हम थोड़ा सा गैस करेंगे कि सेंट्रल एटम हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, बाकी जो एटम्स है उसके सराउंडिंग में है, अब वो कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं। 4 है तो स्क्वायर प्लेनर ले लेंगे, 3 है तो ट्राइगोनल ले लेंगे, 2 है तो लीनियर शेप में ले लेंगे, लाइक दिस। नाउ मोनोएटॉमिक स्पीसीज सच एज हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन एक्सेट्रा ऑलवेज ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजीशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोनोएटॉमिक स्पीसीज जिनमें एक ही एटम होता है एक मॉलिक्यूल में, जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो इनमें क्या करते हैं? इनको हमेशा सबसे किनारे टर्मिनल पोजीशंस पे रखा जाता है। सेंट्रल एटम से सबसे दूर इनको रखा जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट, आफ्टर प्लेसिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर सिंगल बॉन्ड, पहले सिंगल बॉन्डिंग करेंगे सबके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करके। ठीक है। अब उसके बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग करने की कोशिश करेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करके। और बचते हैं तो 3 की करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे। 3 करने के बाद इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते, इसलिए जो बच जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? दे विल बी कॉल्ड लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज टू बी नोटेड दैट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम शुड बी कंप्लीटेड. While doing so, while writing the Lewis representation, we should count the number of valence electron on each atom after sharing, and we have to check whether the octet of each element is completed or not. Each element has 8 electrons in the outermost shell or not. If each element has 8 electrons in the outermost shell or 2 electrons in case of hydrogen and helium, then our structure will be correct one. Let's see some examples. So first example, Lewis dot structure of carbonate ion. What is formula of carbonate ion? CO3 dinegative, means it is an anion. So number of valence electrons in carbon कितने होते हैं? 4. ठीक है. Number of valence electron in oxygen configuration is 2 6, so 6 valence electrons. Total number of valence electrons in carbonate कितना हो जाएगा? 1 into C plus 3 into O. ठीक है. कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4. 1 into 4. ऑक्सीजन में कितने? 6. So 3 into 6. 6 is 18 plus 4 22. So there are 22 valence electrons due to atoms. After that, what is the charge on the anion? -2. So we have to add 2 more electrons, which is equal to number of negative charge present on the anion. So what will be total number of electrons? 22 plus 2, that is 24. So 24 electrons has to be distributed between carbon and 3 oxygen atoms. ये देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले हमने क्या लिखा? लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इसमें कौन सा है? किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है? कार्बन की। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अब कार्बन से कितने एटम्स बॉन्ड कर रहे हैं? 3, इसलिए शेप कैसा रखा हमने? ट्रायंगल के रूप में। कार्बन के चारों साइड ट्राइगोनल प्लेन के रूप में रखा, जिसके ट्राइगोनल मतलब 3 साइड्स। ठीक है, 3 साइड, एक साइड एक एक ऑक्सीजन, दूसरी साइड एंड तीसरी साइड, ट्राइगोनल। अब इस तरीके से रखने के बाद हम इलेक्ट्रॉन्स की अब क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड रखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन रखा कार्बन के साथ, दूसरा ऑक्सीजन का, फिर एक कार्बन का, एक ऑक्सीजन का, एक कार्बन का, एक ऑक्सीजन का। लेकिन
ऐसा करने से क्या हो रहा है देखिए, अगर आप एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा? नहीं। इस केस में देखिए हम क्या करते हैं कि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के रख दिए और ऑक्सीजन का एक भी नहीं, ऑक्सीजन के 6 ऑक्सीजन के पास है। ठीक है। अब दूसरे केस में एक रख दिया किसका, कार्बन का, एक ऑक्सीजन का, एक कार्बन का, एक ऑक्सीजन का। इस तरीके से कार्बन के कितने शेयर हो गए, 4। फिर से समझाता हूँ। कार्बन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक ऑक्सीजन के साथ जो शेयरिंग हो रही है उसमें ऑक्सीजन का एक भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं हुआ, कार्बन के 2 हो गए। मान लीजिए ऊपर वाले में कार्बन के 2 हो गए और ऑक्सीजन का एक भी नहीं है। नीचे वाले 2 ऑक्सीजन के साथ क्या किया, एक कार्बन का और एक जो चार्ज था 2 नेगेटिव जो हमने लिया उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है। फिर तीसरे ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक चार्ज की वजह से आ गया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुआ है किसी में भी। ठीक है। एक कार्बन का हुआ, एक कार्बन का हुआ, ऊपर 2 कार्बन के हुए और नीचे वाले जो 2 एटम्स है उनके साथ जो 2 चार्ज की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे वो आ गए बॉन्डिंग में। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में प्रेजेंट है। जहां पे सिर्फ दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के थे, दैट बॉन्ड विल बी कॉल्ड ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिए और शेयर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कर रहे हैं, तो दिस विल बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो a molecule of carbonate ion consists of a coordinate bond and 2 single covalent bonds. अब आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए कितने होने चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन में, 24। तो और इधर देखिए ऑक्सीजन पे 8 8 8। ठीक है। टोटल कितने हो गए, 8 3 जा 24। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब यहाँ पे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। टोटल कितने हैं, 2 2 4 2 6। 2 बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, लिया इसलिए इसको चार्ज आ गया ऊपर। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था इसलिए चार्ज आ गया। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता तो चार्ज नहीं आता। नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन इज NH4 पॉजिटिव आयन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन कितना होगा, 2 5 कॉन्फिगरेशन, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन 1 into 4 equals 4। टोटल कितने हो गए, 5 + 4 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन NH4। नाउ NH4 डू नॉट एग्जिस्ट, इसके साथ क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, देन इट बिकम्स अमोनियम आयन। So 1 positive charge means 1 electron you have to subtract. Therefore, the total number of electrons in ammonium ion is equals 9 minus 1 equals 8. So 8 electrons has to be distributed between nitrogen atom and 4 hydrogen atoms. ठीक है। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से आप क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है। अब 4 हाइड्रोजन इसमें से आपने 4 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग किया सिंगल शेयरिंग के साथ, एक एक इलेक्ट्रॉन, और जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया था दैट इज लॉस्ट, तो देयर इज पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, एक जो बचा दैट इज लॉस्ट, देयरफॉर 1 पॉजिटिव चार्ज इज देयर। ठीक। सो कैसे हो गया ये, आपके 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन गए। दूसरा तरीका इसमें एक और होता है अमोनियम आयन का बनाने के लिए। पहले आप NH3 का बनाइए, जैसे NH3 का ऊपर अभी बनाया था ना ये वाला। अब इसमें जब आप NH3 का बनाते देखिए क्या हो रहा है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है नाइट्रोजन पे। ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक H+ आयन को देके उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है तो NH4 पॉजिटिव आयन बन जाता है। इसका मतलब 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा H+ आयन के साथ। और जो H+ आयन का पॉजिटिव चार्ज था वही पॉजिटिव चार्ज अमोनियम आयन पे आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि नाइट्रोजन की ये जो बॉन्डिंग हो रही है
नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया एक हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया दूसरे हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन किया तीसरे हाइड्रोजन के साथ, बचे कितने? दो। ये दो इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किया नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन ने यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन के ही दोनों इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। और हाइड्रोजन ने एक भी इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दिया? क्योंकि हाइड्रोजन एटम ना होके क्या है, H+ आयन है। H+ आयन के पास इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, इसलिए दिया नहीं। उसने कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर लिया नाइट्रोजन के साथ, और जो H+ आयन का पॉजिटिव चार्ज था वो ऊपर पूरे आयन पे पॉजिटिव चार्ज के रूप में रिफ्लेक्ट हो गया। समझ में आ गया बेटा? Have you Yes, understood sir. how? Yes, sir. Okay. So here are some more examples of Lewis structure. आप देख लीजिए, इनको डिटेल में पढ़ेंगे आप समझ में आएगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनेगा तो कैसे बनेगा? कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास है। ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, ठीक है। तो 6 में से क्या हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया इसने और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। 4 कैसे कंट्रीब्यूट किया? ये देखिए बीच में कितने हैं? 6। इस 6 में से 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन हो। इक्वल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन कब होता है? जब सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो इक्वल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन नहीं होता, सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और शेयर दोनों करते हैं। तो जो कार्बन और मोनोऑक्साइड के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक डबल बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड कैसे बना? 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। अब तीसरे बॉन्ड के लिए जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसका है? वो ऑक्सीजन का है। So oxygen has given one more pair of electron in order to complete the octet. इसलिए ये तीसरा जो बॉन्ड बनेगा वो ऊपर वाला वो क्या हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड हम शो करते हैं, लेकिन इस ट्रिपल बॉन्ड में क्या है? एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के होते हैं। तो टोटल ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? ये एक नॉन बॉन्डेड या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड, 6 + 2 8, ठीक है। अच्छा, अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन पे? 6 + 2 8। कार्बन पे कितने? 6 + 2 8। द ऑक्टेट ऑफ बोथ द एटम्स बिकम कंप्लीट, so the molecule is stable molecule. इस तरीके से इसमें बॉन्डिंग हुई कार्बन मोनोऑक्साइड में। एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? ऑक्सीजन एटम ने दिए। कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे क्या होगा? एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, ठीक। कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रॉनिगेटिव है इसलिए इसको बीच में रखा। अब कार्बन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। 2 इलेक्ट्रॉन से कंट्रीब्यूट किया एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए। तो क्या हो गया? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड ऑक्टेट ऑफ ऑल 3 एटम्स इज कंप्लीट। ऑक्सीजन के देखिए कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस वे, इन a molecule of carbon dioxide there are two double bonds formed between carbon atom and 2 oxygen atoms, and both the oxygen atoms have 2 pairs of lone pairs of electrons or non bonded electrons. दोनों ऑक्सीजन के पास 2 पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं। 6 में से 2 तो यूज हो गए डबल बॉन्डिंग में, दोनों ऑक्सीजन एटम के 2 और बचे कितने? 4 जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए ऑक्सीजन पे, इनको क्या बोलते हैं? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लाइक दिस। O2 मॉलिक्यूल आपने पहले देख लिया डबल बॉन्डिंग। ओजोन में देखिए कैसे होता है। ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए हमको पता नहीं सेंट्रल कौन सा होगा। सबको एक ऐसे एंगुलर फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब बॉन्डिंग कैसे होगी कि देखिए एक ऑक्सीजन एटम जो नीचे वाला है
उसने 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए बॉन्डिंग के लिए, बीच वाले ने भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए बॉन्डिंग के लिए। तो बीच में क्या बन गया, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, सो डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। अब ये जो बीच वाला ऑक्सीजन एटम है वो नेक्स्ट राइट साइड वाले ऑक्सीजन एटम के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करेगा मतलब बीच वाला ऑक्सीजन एटम ही 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, और बीच वाला और नीचे वाला इधर राइट साइड में नीचे वाला, ये दोनों क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। इसलिए नीचे वाला जो ऑक्सीजन एटम है उसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो बन रहे हैं, एक्चुअली दे आर नॉट एक्चुअल चार्ज, they are used to represent the formation of a coordinate bond. और coordinate bond में क्या होता है, the atom which contributes a pair of electron acquires positive charge, and the atom which do not contribute but uses the pair of electron is represented by negative sign. ठीक है, तो ये नीचे वाला ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो इसके नहीं है, ये सिर्फ उसको यूज कर रहा है। बीच वाले में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं। So here is the formation of a coordinate bond, and in the left side there is formation of double covalent bond. So structure is like this. एक पेयर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, दूसरे पेयर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन एंड माइनस साइन। प्लस साइन का मतलब ये डोनर एटम है इलेक्ट्रॉन पेयर का, नेगेटिव साइन मतलब ये एक्सेप्टर एटम। पूरा करने के बाद क्या बच रहा है, इस फर्स्ट ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर्स, बीच वाले के पास 1 लॉन पेयर, और तीसरे वाले के पास 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल H2O2 मॉलिक्यूल सेम ऐसे ही, एक ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग, दूसरे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग, और दोनों ऑक्सीजन के पास 2 पेयर्स ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नाउ octet of both the oxygen atom is completed and duplet of both hydrogen atoms is completed. So the structure of hydrogen peroxide is like this: H single bond O single bond O single bond H, और दोनों ऑक्सीजन के पास 2 lone pairs of electrons. Sulfur trioxide molecule, sulfur is less electronegative than oxygen, इसलिए सल्फर को रखा बीच में, 3 ऑक्सीजन उसके सराउंडिंग में, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग, एक सल्फर और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, और एक सल्फर और तीसरे ऑक्सीजन के बीच में क्या है, ये सल्फर के टोटल कितने, 2 2 4 2 6, ठीक है, तो 2 यहाँ पे यूज हो गए। अब एक सल्फर का और एक ऑक्सीजन का करोगे तो ऑक्सीजन का डिस्टर्ब हो जाएगा, 5 रहेंगे। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के, तो एक डबल बॉन्ड होगा और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे। ये वाला जो बॉन्ड है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इधर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मतलब बॉन्डिंग में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए वो दोनों सल्फर एटम्स के हैं, ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इधर भी ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इसका मतलब ऑक्सीजन बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ये चारों इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, सल्फर एटम के हैं। यहाँ भी सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ भी सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सो अ मॉलिक्यूल ऑफ SO3 involves formation of a double covalent bond between sulfur atom and 1 oxygen atom, and the formation of 2 coordinate bonds between 2 different oxygen atoms. Similarly, you can understand the structure of all these molecules. इतने molecules मैंने आपको इसमें इसलिए डाल दिए हैं ताकि आप इनको पढ़े नोट्स में और आप समझ पाएंगे। एक और बताता हूं, जैसे मान लीजिए सल्फेट आयन है, SO4 डाइनेगेटिव आयन, ठीक है, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, 2 2 4 2 6 2 8, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, 16, 286। सो अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग किया, 2 इलेक्ट्रॉन और उसने गेन किए। तो इस केस में आप देखिए हर जगह सल्फर है, 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के, 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के, ठीक है। तो इधर देखिए ये जो ऑक्सीजन एटम है फर्स्ट वाला, इसका 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसका मतलब ऑक्सीजन ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिमिलरली राइट साइड में
6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास है, इसका मतलब इसने भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। सिर्फ सारे ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसके हैं? सल्फर के 4 यूज हो गए। ठीक है, अब ऊपर देखिए ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। ठीक है, ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक लॉन पेयर बचा और एक ये है, एक लॉन पेयर बचा, एक ये है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ऑक्सीजन के पास एक पेयर ऑफ लॉन पेयर नहीं बचना चाहिए, बल्कि ऑक्सीजन के पास 2 बचने चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड करेक्टली। ठीक है, सल्फर के पास टोटल 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिया, अब 2 और बचे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सल्फर का, एक इलेक्ट्रॉन नीचे सल्फर का, एक जो एक्स्ट्रा चार्ज वाला है वो इलेक्ट्रॉन आ गया, एक एक्स्ट्रा चार्ज वाला नीचे आ गया। ठीक है, तो जो बचे इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्सीजन के पास बचेंगे। इस तरीके से होगा। अभी सल्फर का दोबारा दिखाता हूं मैं आपको, सल्फेट आयन का। ये देखिए यहाँ पे सल्फेट का, अभी दिख रहा है ये वाले फिगर में सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर। वहां पे वो गलत बनाया Yes, है। sir. इसमें देखिए आप कैसे है, एक सल्फर, जैसे ऊपर से देखना चालू करो तो ये ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 2 2 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट कर दिया शेयरिंग के लिए। तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो गई, मतलब सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दे दिया, डबल बॉन्डिंग हो गई। ठीक, अब इधर लेफ्ट साइड वाले ऑक्सीजन के साथ देखिए, इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे? लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर्स आर लेफ्ट, मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ही हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग में यूज हुए, 2 सल्फर के यूज हुए, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, डबल बॉन्ड नीचे इधर लेफ्ट साइड बन गया, डबल बॉन्ड इधर राइट ऊपर बन गया। अब नीचे वाले ऑक्सीजन पे देखिए कितने लॉन पेयर हैं? 3, 1 2 3। इसका मतलब नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है उसमें ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ सल्फर के ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं, इसका मतलब ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इधर ऑक्सीजन का एक भी यूज नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन, 3 के 3 लॉन पेयर्स हैं, सल्फर का यूज हुआ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म। और राइट साइड में इधर देखेंगे, अगेन ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 वैलेंस 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब इस ऑक्सीजन ने भी बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो ये जो एक पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये कहां से आया? ये पेयर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आया 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज से, क्योंकि सल्फर के तो खत्म हो गए, 2 लेफ्ट साइड में, 2 ऊपर 2 नीचे, 6 खत्म हो गए। तो अब ये जो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे, ये कहां से आए? 2 नेगेटिव चार्ज की वजह से आए, मतलब इसने कहीं से गेन किया है, किसी मेटल एटम से गेन किए गए। इन दिस वे ऊपर क्या बना? एक डबल बॉन्ड, इधर क्या बना? एक डबल बॉन्ड। ठीक है, नीचे बना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये, तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं इसमें और 2 डबल बॉन्ड है। दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन, और इन दिस वे वी कैन राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन। क्लियर चिल्ड्रन? समझ में आ गया? इस वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा सा डॉट्स जो है वो गलत बने हैं, वो सही नहीं बने। वाटर मॉलिक्यूल हो गया, मीथेन मॉलिक्यूल इजी है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डिंग। सिमिलरली इथीन मॉलिक्यूल में, ये आपने 10th में नहीं पढ़ा था, 2 कार्बन एटम है, दोनों के बीच में डबल बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डिंग। इथीन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है, C2H2 में 2 कार्बन एटम, दोनों के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग, मतलब 3 एक कार्बन का, 3 एक कार्बन का, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के पास बचे, दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग। अमोनिया मॉलिक्यूल हो गया। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में एक फास्फोरस एटम, 3 क्लोरीन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो फास्फोरस के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? देखिए 5। तो इधर क्लोरीन के पास टोटल कितने होते हैं? 7 मतलब इधर देखिए क्या है, 2 2 4 2 6, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी है, मतलब 3 लॉन पेयर्स आर देयर, रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। नीचे भी 3 3 3, मतलब 3 pairs of electrons are left, the 7th electron is utilized for bonding। थर्ड क्लोरीन एटम में भी यही हो रहा है। ठीक, 3 pairs are left and 7th electron is involved in bonding।
phosphorus is left with one more pair of electron, non-bonding pair of electron. So PCl3 में phosphorus के ऊपर एक lone pair of electron भी present होगा. NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर एक lone pair of electron present होगा. कार्बोनेट हो गया. फॉस्फेट, फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? PO4 ट्राई नेगेटिव. ठीक है. फॉस्फोरेट में आप देख सकते हैं कैसे बना. फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5. ठीक. ऑक्सीजन के पास कितने? 6. 6 4 जा 24 प्लस 5 29, 29 प्लस 3 32 electrons has to be distributed between one phosphorus atom and 4 oxygen atoms. और इस तरीके से बॉन्डिंग हुई कि एक क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड हुआ. अब इस वाले में देखिए ऑक्सीजन के पास कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास हैं. तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? फॉस्फोरस ने दिया, मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. फिर इधर भी क्या हुआ? 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है. इसका मतलब बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? फॉस्फोरस से आए. ठीक है. और या तो फॉस्फोरस से आए या तो निगेटिव चार्ज से आए. अब फॉस्फोरस के टोटल कितने यूज हो गए? 2 तो यहाँ पे यूज हो गए डबल बॉन्डिंग में, 2 यहाँ हो गए 4. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉस्फोरस का और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया चार्ज की वजह से. यहाँ पे भी देखिए 2 2 4 2 6, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है. इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? बाहर से आए जो चार्ज है. इस तरीके से बाहर वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो इसमें एक डबल बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स है. ठीक है. फॉस्फोरस में. तो इन दिस वे we can write the Lewis structures or Lewis representation of molecules. ये जितने भी मॉलिक्यूल्स मैंने नोट्स में आपको दिए हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स को आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना बनाने के लिए. ठीक है. एग्जाम में हालांकि सभी नहीं पूछे जाते, कुछ कॉमन है जो पूछे जाते हैं, जैसे कार्बोनेट है, सल्फेट है, अमोनियम है, फॉस्फेट है, PCl5 है, PCl3 है, इथेन, इथीन, मीथेन, वाटर, बस इन्हीं को ज्यादा पूछा जाता है. ठीक है. तो चिल्ड्रन, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल. पहला लिमिटेशन, it fails to explain why some molecules with incomplete octet are stable. In some covalent compounds, central atom has less than 8 electrons. That is, it has incomplete octet. Why such molecules are stable? Octet rule do not explain. जैसे LiCl, लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में एक ही होता है, क्लोरीन का 1, सिंगल बॉन्डिंग हो गई. अब क्लोरीन का तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्योंकि 2 2 4 2 6 थे प्लस 1, ये तो 8 हो गए. लेकिन लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ. यहाँ पे लिथियम के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली BeH2 एंड BeCl2 अगर मान लीजिए कोई सभी, तो बेरिलियम के पास इधर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 + 2 4, और एक भी लॉन पेयर नहीं है. तो इट्स ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट बट द मॉलिक्यूल इज स्टेबल. Similarly, BCl3, how many valence electrons are there? बोरॉन पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 क्लोरीन के साथ कर लिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोरॉन के सराउंडिंग में? 6. ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी BCl3 मॉलिक्यूल इज स्टेबल. द स्टेबिलिटी ऑफ सच मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड विद ऑक्टेट रूल. देयरफॉर इट इज लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल. देन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स. कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ऐसे मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस को भी ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. देयर आर certain molecules which have odd number of electrons. The octet rule is not applied for these atoms. जैसे आप देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो गई, तो इसमें नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 2 6 1 7. 4 तो हो गए डबल बॉन्ड से, 2 ऊपर, 4 2 6 और 1 7. ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है. ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? जब कोई ऑड इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास बॉन्डिंग में होता है, किसी मॉलिक्यूल के पास होता है, दैट इज वेरी वेरी रिएक्टिव स्पीसीज. क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयर अप होने के लिए, बॉन्डिंग करने के लिए, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए बहुत जल्दी बॉन्डिंग करने की कोशिश करता है. तो existence of such odd number of electron species cannot be explained by octet rule. Then the third one is expanded octet, जहाँ पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, फिर भी मॉलिक्यूल स्टेबल रहता है. ऐसा क्यों? ऑक्टेट रूल कैनॉट एक्सप्लेन.
So in many compounds, there are more than 8 valence electrons around the central atom. It is termed as expanded octet. जैसे PF5, फॉस्फोरस के सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर भी ये स्टेबल है, ऐसा क्यों? SF6 में, ये PF6 नहीं है, SF6. तो SF6 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12. So sulfur atom in SF6 has 12 electrons, which is 4 more than octet. How can such a molecule exist? That cannot be explained with octet rule. Some other drawbacks of octet rule are, it cannot explain why inert gases also form molecules. हम बोलते हैं कि inert gases जो उनका octet complete होता है इसलिए वो bonding में भाग नहीं लेते, फिर भी कुछ molecules हैं xenon के जो कि xenon के combination के कारण बनते हैं, जैसे XeF2, XeOF2 etc. ये मॉलिक्यूल क्यों बने, क्यों स्टेबल है, इसका एक्सप्लेनेशन ऑक्टेट रूल से नहीं हो सकता. एंड दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड इट्स स्टेबिलिटी. सो दीज आर सर्टेन limitations of octet rule. Children, I am coming back now. I'm stopping. The time is over.